हेलो बच्चों, कैसे हो? आपका स्वागत है त्रिपान स्टडी सेंटर में। आज जो हम करने जा रहे हैं क्लास 10th एनआईएस बोर्ड का जो है सोशल साइंस यानी सामाजिक विज्ञान का चैप्टर नंबर 16, जिसमें आज हम करेंगे फंडामेंटल राइट एंड फंडामेंटल ड्यूटीज़ यानी मौलिक अधिकार और मौलिक कर्तव्य के ऊपर विशेष प्रकाश डालेंगे। ये टॉपिक हर एक क्लास के बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा, चाहे वो सीबीएसई में पढ़ते हों, चाहे एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, चाहे यूपी बोर्ड के बच्चे हों, चाहे बिहार बोर्ड के बच्चे हों। सभी बच्चों के लिए महत्वपूर्ण रहेगा। इवन कि जो बच्चे कॉम्पिटिशन की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए भी काफ़ी महत्वपूर्ण ये टॉपिक रहने वाला है। इसमें हम मौलिक कर्तव्य और मौलिक अधिकार के ऊपर जो है काफ़ी प्रकाश डालेंगे और जानेंगे हर एक पहलू पे। लेकिन आपको पता है, चैप्टर स्टार्ट करने से पहले एक बात जो मैं हमेशा कहता हूँ, जिसको आपको सोचना भी चाहिए, विचार भी करना चाहिए और इवन अमल भी करना चाहिए, वो ये है कि जब भी वीडियो देखिए पूरा देखिए, क्योंकि अधूरा जानकारी सदैव खतरनाक होता है। साथ में एक इंपॉर्टेंट बात ये भी रहता है, अगर आप पहली बार वीडियो देख रहे हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलना, क्योंकि दोस्तों लाइक कीजिएगा तो बनाने वाले का मनोबल बढ़ता है, सब्सक्राइब कीजिएगा तो इससे ये होता है कि जब भी मैं कोई वीडियो डालूंगा उसका नोटिफिकेशन आपको समय रहते मिल जाएगा। और देखिए, शेयर का मतलब ये होता है कि आपके थ्रू न जाने किन बच्चों को हेल्प मिल जाए, ये आप भी नहीं जानोगे, इसलिए जो है आप शेयर जरूर करो, ठीक है। व्हाट्सएप स्टेटस पे भी लगाओ। दोस्तों एनआईएस सेंटर जो है कई मानने में बहुत से बच्चों के लिए हेल्पफुल है, चाहे वो 8th क्लास हो, 9th 10th 11th 12th हो, चाहे वो एनआईएस बोर्ड के बच्चे हों, ठीक है, चाहे बीए एमए के बच्चे हो, सभी क्लासों के लिए कुछ ना कुछ जो है त्रिपान सेंटर में उपलब्ध है। तो इसलिए आपके लिए ज़रूरी है कि आप सब्सक्राइब करके इसको चैनल को जो है सेव कर लो, नहीं तो बाद में अगर रिसर्च करोगे तो शायद आपको ये चैनल प्राप्त ना हो। तो इसलिए सोचना नहीं, विचार नहीं करना है, सब्सक्राइब करके जो है अपने पास सेव करना है। दोस्तों ये तो बात था आपके लिए, लेकिन अब देखते हैं हमारा आज टॉपिक क्या है। Our next topic is the most important here, fundamental right as a human rights. This is important. Fundamental rights as a human right. You have already read that fundamental rights are needed very initially for the well begins of every citizen. We also know that people have a way struggle against injustice, exploitations, and equality for their creation of the better surrounding, better living conditions, and preservation of human dignity. Effort to avail such as a right to all human beings have been to made at the international level also by recognizing various rights which are popularly known as the human right. There is a most important word here. The human right, effort to avail such a rights to all human beings has been made at a international level also by recognizing of various rights which are popularly known as a human right. The General Assembly of United Nations adopted human rights in 1948. The United Nations adopted human rights in 1948 and ensuring them to universal declaration of human rights, about which you will be study later. Some of the human rights: equality before a law, freedom from discrimination, right to life, liberty and personal security, right to free movement, right to education, right to the marriage and family, and freedom of thought. Conscience and the religions, and the right to the peacefully assemble and associations, and right to participate in the cultural life of the community. If you carefully examine the above mentioned right, you will realize how important the human rights are. And that's why many of human rights have found is a place in the chapter on the fundamental right in the Indian Constitution. The human right which could not find place under a fundamental right has been included in the chapter on directive principle of state policy. Moreover, keeping the view of the importance of human rights, the National Human Rights Commission was founded in 1993 by the government of India to be guaranteed that Indian citizens also enjoy those rights. The next year, fundamental duties. The fundamental duties here, after going through the fundamental right, you must have observed and realized that is a turn for every right. The society expects their citizen to do a content things which are collective, known as the duties. Some such important duties has been incorporated in the Indian Constitution also. The original Constitution is in force on 26th January 1950 did not be mentioned anything about the duties of citizen.
It was expected that the citizens of free India would be perform their duty billings. But things did not go as expected. Therefore, 10 fundamental duties were added in a part here of 4. This is important here, part of the 4 of the Constitution under Article 51A in the years 1976 to 42 constitutional amendment here. However, there is a fundamental right are justiciable as the fundamental duties are non-justiciable. It means that is a violation of fundamental duties there. Non-performance of this duty by citizen is not punishable. This is important here. The following 10 duties has been listed in the Constitution of India. There is important 10 fundamental duties here. To abide by the Constitution and respect its idols and institution. The national flag, national anthem. A second here, to be quizzes on and flow there is a noble idea which is the inspire our national struggle for their freedom. And to uphold and protect their sovereignty, unity and integrity of India. And the next year, to defend the country and render national service when it's called upon to do. And the next year, to promote the harmonies and the spirit of common brotherhood amongst all the people of India and to resonance is a practice of degraded to be dignity of human. The next year 6, to the value and preserve the rich heritage of our composite culture and to protect and improve their natural environment including forest, lakes, river and wildlife here. And the 8th year to be develop their scientific temper, humanism and the spirit of inquiries and the reform. That is important here. And the 9th year to the safety guard public property and not be used of violence and here. And the next year to serve the to award excellence in all the sphere of individual and collective activity. This is important. Besides, new duties has been to added after the passage of the Right to Education Act 2009. A parents or guardian has to provide opportunity to be education of his child was between the age of 6 and 14 years. This is important. The next year, nature of fundamental duties. The nature of fundamental duties here, and these duties are their nature of code of conduct. Since they are unjustifiable, there is no legal sessions behind them. As you will be find, a few of these duties are wages. For example, a common citizen may not be understand what is meant by their composite culture and its heritage, humanism, and excellence in all sphere of individual and collective activities here. They will be realized important of these duties only when this term are simplified. There is the most important nature of fundamental duties here. A demand has been made from time to time, and while there is a present list, simplify there is a language and make them more realistic and meaningful and add some urgently require more realistic duties. As for a possible, there should be a added justiciable. That is important. यहाँ पर जो हमारे समक्ष आया है मानव अधिकारों के रूप में मूल्य अधिकार का क्या यहाँ महत्व है। और मानव अधिकारों के रूप में मूल्य अधिकार की बात करें तो ये काफ़ी महत्वपूर्ण हो जाता है। अब यह पहले ही पढ़ चुके हैं कि प्रत्येक नागरिक की खुशहाली के लिए मूल अधिकार वास्तव में बहुत ही आवश्यक होता है। और हम यह भी जानते हैं कि अच्छे परिवेश, अच्छी जीवन दशा तथा मानवीय गरिमा को संरक्षण के लिए मानव हमेशा से ही अन्याय, उत्पीड़न तथा असमानता के विरोध में जो है संघर्ष में ही रहा है। और ये महत्वपूर्ण भी बात थी कि इंसान जो है अन्याय के खिलाफ, उत्पीड़न के खिलाफ और असमानता के विरोध में हमेशा ही संघर्ष करता रहा है। अभी मानवों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ऐसे बहुत से अधिकारों को प्राप्त करने के प्रयास किए गए हैं जिन्हें मानव अधिकार कहा जा सकता है। यानी बहुत से प्रयास किए गए हैं अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर। संयुक्त राष्ट्र की महासभा ने
1948 में मानव अधिकारों को जो है अंकित किया गया था। यानी 1948 में जो है मानव अधिकारों को हमने अपने संविधान में जोड़ दिया था। और मानव अधिकारों का सार्वभौमिक जो है घोषणा पत्र में सुनिश्चित किया, जैसे आप बाद में जानेंगे और समझेंगे। कुछ मानव अधिकार है जैसे कि कानून के समक्ष समानता, भेदभाव से मुक्ति, जीवन स्वतंत्र और विवेकता सुरक्षा का अधिकार, और जो है वाद्य भ्रमण का अधिकार, शिक्षा का अधिकार, शादी व परिवार बनाने का अधिकार, विचारों का अधिकार, अंतकरण तथा धर्म की स्वतंत्रता दी गई है। शांतिपूर्वक सम्मेलन और संघ बनाने का भी अधिकार यहाँ पर दिया गया है। समुदायों के संस्कृति जीवन में भाग लेने का अधिकार भी दिया गया है। और बहुत से ऐसे अधिकार हैं जो हमारे संविधान ने दिए हैं हमें। यदि आप उपयोग अधिकारों और सावधानीपूर्वक परीक्षण करेंगे तो महसूस करेंगे कि मानवीय अधिकार कितने महत्वपूर्ण हैं और इससे काफ़ी जीवन पे जो है असर पड़ता है। तो ये अधिकार काफ़ी महत्वपूर्ण हैं और इन अधिकारों के बिना मनुष्य नहीं रह सकता। इसलिए भारतीय संविधानों ने हमें ये सारे अधिकार जो है स्वतंत्र रूप से हमें दिए हैं। यही कारण है कि इसके भारतीय संविधान ने मूल अधिकारों का अध्ययन में स्थान दिया गया है। और कुछ मानवाधिकार जो मूल अधिकारों के अध्याय में उल्लेखित नहीं है, उन्हें राज्य के नीति निर्देश सिद्धांतों के अध्याय में शामिल किया गया है। अब देखिए, कुछ बातें जो हैं हमारे मानवाधिकारों के मूल अधिकारों में नहीं सम्मिलित किया गया है, तो इसको दूसरे रूप में सम्मिलित किया गया है, जिसमें हम नीति निर्देश सिद्धांत जब अध्ययन करेंगे तो उसमें इसको जो है सम्मिलित किया गया है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण भी है। और इसके अतिरिक्त मानवाधिकारों के महत्व को ध्यान में रखते हुए भारत सरकार द्वारा 1993 में राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन भी किया गया। अब देखिए, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग का गठन होना एक बहुत ही महत्वपूर्ण बात की तरफ इशारा करता है, क्योंकि इससे मानव अधिकारों का जो है हनन नहीं हो सकता, ताकि इन अधिकारों के भारतीय नागरिकों के लिए प्रतिभूति किया जा सके और सही मानने में जो है भारतीय नागरिक इसका उपयोग भी बखूबी कर सके। इसलिए जो है किन्हीं कारणों से राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग की गठन की गई थी। उसके पश्चात हमारे समक्ष आता है मूल्य कर्तव्य। देखिए, मूल्य अधिकारों को जानने के बाद आपने महसूस किया होगा कि प्रत्येक अधिकार का एवज में नागरिकों की समाज भी कुछ आशा रखती है। अगर आपको कुछ अधिकार दिया जाता है तो आपसे भी कुछ आशा रखी जाती है, जिन्हें सामूहिक रूप से मूल्य कर्तव्य कहा जाता है। यानी जो आपका कर्तव्य बनता हो तो आपको करना ही पड़ेगा। कहते हैं कुछ अधिकार दिया गया है तो कुछ कर्तव्य भी होता है, क्योंकि ये एक ही सिक्के के दो पहलू हैं। अगर आपको अधिकार दिया गया है तो आपके साथ कुछ कर्तव्य भी जुड़ जाता है। और ऐसे कुछ महत्वपूर्ण कर्तव्य भारतीय संविधान में भी सम्मिलित किए गए हैं। कहते हैं 26 जनवरी 1950 को लागू मूल संविधान में मौलिक कर्तव्य उल्लेख नहीं किया गया था। यानी 26 जनवरी 1950 को जब संविधान लागू की गई थी तो उसमें मौलिक कर्तव्य का उल्लेख नहीं हुआ था। और यह आशा की गई थी कि स्वतंत्र भारत के नागरिक अपने कर्तव्य का पालन अपनी इच्छा से करेंगे। यानी देखा जाए तो उनको सभी जो है नायकों का यही विश्वास था कि भारतीय नागरिक जो है जिन तकलीफ़ों से उन्होंने गुजरा है उन तकलीफ़ों से दोबारा नहीं गुजरना पड़ेगा और वो जो है अपने कर्तव्य को भली भांति समझेंगे। इसलिए इसको जो है नागरिकों पर छोड़ दिया कि वो अपने कर्तव्य का पालन जो है अपनी इच्छाओं से ही करें। परंतु ऐसी आशा की गई थी, वैसा नहीं हुआ था। कहते ना, जो हम आशा करते हैं वैसा नहीं हुआ। लोगों ने स्वतंत्रता तो उनको मिल गई, लेकिन जो कर्तव्य उनको दी गई थी वो कर्तव्य नहीं निभा पाए। अब सोचिएगा कैसे। मान लीजिए हमें स्वतंत्रता मिलती है, किसी भी पर्यटक स्थान पे जाने की, घूमने की स्वतंत्रता होती है, लेकिन आपका एक कर्तव्य बनता है ना कि उस स्पॉटों पे गंदगी ना फैलाएं। लेकिन लोग ऐसा मानते हैं। आप कोई भी जो है घूमने वाले स्थान पे चले जाइए, वहाँ कूड़ा करकट आपको खुलेआम दिखेगा। इवन कि देखिए, कोई पार्क हमारा अधिकार है कि हम पार्क में घूम सकते हैं, सभी चीज़ कर सकते हैं, खेल कूद सकते हैं, लेकिन हमें ये अधिकार तो नहीं मिला है कि पार्क को हम तोड़ दें, उसके झूलों को ख़त्म कर दें। तो ये कहते हैं इंसान कोई सारी चीज़ें पता है लेकिन फिर भी गलत किए जा रहे हैं। इसलिए जो आशा रखी गई थी वो आशा पूरा नहीं हुआ। इसलिए 1976 में 42वें संविधान संशोधन द्वारा संविधान के भाग 4 में अनुच्छेद 51 में 10 मूल्य कर्तव्य को भी शामिल कर दिया गया कि लोगों को इन कर्तव्यों का पालन करना पड़ेगा। अगर कोई भी इन कर्तव्यों का पालन करता हुआ नहीं मिलता है तो उसको भारतीय संविधान के अंतर्गत उसको सजा का प्रावधान किया गया है। यदि यह मूल अधिकार न्यायालय द्वारा प्रवर्णित है, यही मौलिक कर्तव्य न्यायालय द्वारा प्रवर्णनीय नहीं बनाए गए हैं। इसका अर्थ यह है कि मौलिक कर्तव्य का उल्लंघन होने पर, अर्थात मौलिक कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किए जाने पर नागरिक को
दंडित नहीं किया जाएगा। ये बात काफ़ी महत्वपूर्ण रहेगा कि मौलिक कर्तव्य उल्लंघन होने पर अर्थात मौलिक कर्तव्य का ठीक से पालन नहीं किए जाने पर नागरिकों को दंड नहीं किया जाएगा। लेकिन निम्नलिखित 10 मूल्य कर्तव्य संविधान में सम्मिलित है, जो नीचे दिया हुआ है, जिसके बारे में हम जानेंगे और समझेंगे कि मूल्य कर्तव्य क्या है और ये हमारे लिए क्यों महत्वपूर्ण है। कहते हैं बेशक दंड की इतनी अधिक प्रावधान नहीं की गई है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हम इसका गलत उपयोग करें। कहते हैं अगर कुछ अधिकार आपको मिला है तो उनको कर्तव्य के साथ उसको पालन भी कीजिए और उसको सही रूप दीजिए, तो वही अच्छा से अच्छा हो सकता है। अब चलिए देखते हैं वो 10 मूल्य कर्तव्य संविधान में जो सम्मिलित की गई है वो कौन कौन से हैं और इसका क्या महत्व हमारे जीवन में हो सकता है। इसमें यही बात दर्शाया गया कि भारत के प्रत्येक नागरिक का यह कर्तव्य होगा कि वे संविधान का पालन करें, उसके आदर्शों, संस्थाओं, राष्ट्रध्वज और राष्ट्रीय गान का आदर करें। स्वतंत्रता के लिए हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के प्रेरित करने वाले उच्च आदर्शों को हृदय में संजो कर रखें और उनका पालन सदैव करते रहें। ये सारे कर्तव्य सम्मिलित की गई थी। भारत की प्रभुता, एकता, अखंडता की रक्षा करें और उसे अक्षुण्ण रखें। देश की रक्षा करें और आह्वान किए जाने पर राष्ट्र की सेवा करने के लिए सदैव तत्पर रहें। भारत के सभी लोगों में समरसता और सम्मान मातृभूमि की भावना का निर्माण करें तथा ऐसी प्रथाओं का त्याग करें जो स्त्रियों के सम्मान के विरुद्ध हों। तो ये सारी चीज़ महत्वपूर्ण है। यहाँ पर भातृत्व यानी ब्रदरहुड की बात बताई गई है और स्त्रियों के सम्मान का भी यहाँ पर रक्षा करने की बातें की गई है, जो कि हमारे संविधान में ये हमारा कर्तव्य बन जाता है। देखा जाए तो भारतीय संविधान में बात और भी जोड़ दी गई कि हमारी मिश्रित संस्कृति और गौरवशाली परंपरा का महत्व समझे और उसका संरक्षण करें। यानी आपको पता है कि भारत कई धर्मों का देश है और सभी धर्मों में अलग अलग संस्कृति है और उनकी मिश्रित संस्कृति हमारे भारत का परंपराओं को एक अलग ही रूप देता है। इसलिए हर एक संस्कृति की, हर एक परंपरा का हमें सम्मान करना चाहिए। बेशक आप संस्कृति से नहीं भी जुड़े हुए हो, फिर भी आपको संस्कृति का सम्मान करना आपका दायित्व बन जाता है, कर्तव्य बन जाता है। उसके पश्चात है प्राकृतिक पर्यावरण की, जिसके अंतर्गत वन, झील, नदी और वन जीवन है रक्षा करें। देखिए ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात है कि वन, झील, नदी और वन जीवन की रक्षा करना हमारे कर्तव्य में सम्मिलित किया गया है। लेकिन जनरली बात देखा जाए तो आज के समय में ये सब कुछ भी नहीं हो रहा है। चाहे वन हो, चाहे झील हो, चाहे नदी हो, चाहे वन्य जीवन हो, उनको तो लोगों ने कुछ भी नहीं समझते, उनको तो आए दिन दोहन कर रहे हैं, जो कि हमारे संविधान में इस बात के लिए प्रावधान नहीं दिया गया है कि किसी चीज़ को हम बर्बाद करें। अब चलिए इस बात को सरकार को सोचने की आवश्यकता होगी, इस पर हम कुछ भी आगे कमेंट नहीं कर सकते। कहते हैं वैज्ञानिक दृष्टिकोण, मानववाद और ज्ञानार्जन तथा सुधार की भावना का विकास करना अत्यंत महत्वपूर्ण बन जाता है। सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षित रखें और हिंसा से सदैव दूर रहने की कोशिश करें। यानी सार्वजनिक संपत्ति की सुरक्षा करें और हिंसा से सदैव ही दूर रहें, क्योंकि हिंसा किसी भी देश और जग के लिए कल्याणकारक नहीं हो सकता है। व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट की ओर बढ़ने का सतत प्रयास करें कि जो आपके लिए सही है उसमें सदैव ही बढ़ने का हमें प्रयत्न करते रहना चाहिए। उपरोक्त के अतिरिक्त अगर देखा जाए तो 2009 में शिक्षा के अधिकार अधिनियम के पारित होने के बाद एक नया कर्तव्य जोड़ दिया गया कि प्रत्येक माता पिता या अभिभावक का यह कर्तव्य है कि वह अपने बालक या प्रतिपाल के लिए 6 से 14 वर्ष की आयु के बीच शिक्षा का अवसर प्रदान करें। तो ये 2009 में सम्मिलित किया गया था, जिसमें शिक्षा के अधिकार के अंतर्गत सम्मिलित किया गया, जो कि भारत को शिक्षित करने के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण था। उसके पश्चात है मौलिक कर्तव्य की प्राकृतिक। आखिर मौलिक कर्तव्य की प्राकृतिक किस प्रकार की है? यह कर्तव्य देखा जाए तो प्रकृति से आचार संहिता है, क्योंकि ये न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय नहीं है। यानी न्यायालय द्वारा ये परिवर्तन नहीं किया जा सकता। अंततः इसके पीछे कोई कानूनी अनुशासित नहीं है। जैसा कि आप देखेंगे इनमें कुछ कर्तव्य अस्पष्ट भी हैं। उदाहरण के लिए मिश्र संस्कृति, गौरवशाली परंपरा, मानववाद और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट आदि का अर्थ एक सामान्य नागरिकों की समझ से परे है। कहते हैं ये सारी बातें ऐसे है, संस्कृति, मिश्रित संस्कृति। अब देखिए यहाँ पर अगर मैं समझाने की कोशिश करूँ तो मिश्रित संस्कृति का मतलब यही है कि हमारे देश में कई संस्कृति पाए जाती हैं और सभी संस्कृति को सम्मान की भावना देना सब
प्रत्येक धर्मों का अधिकार है, क्योंकि सभी धर्मों को जो है दूसरे धर्मों को इज्जत करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए। उसके पश्चात है गौरवशाली परंपरा। हमारी जो गौरवशाली परंपराएं हैं जो पुराने समय से आ रहा है, उनकी हमें सम्मान करने की बात यहाँ पर रखी गई है। उसके बाद है मानववाद। मानववाद है कि मानव के लिए जीना, मानव को कष्ट न पहुँचाना मानववाद के अंतर्गत आता है। और व्यक्तिगत और सामूहिक गतिविधियों के सभी क्षेत्रों में उत्कृष्ट आदि का अर्थ। देखिए यहाँ पर व्यक्तिगत मतलब जो आपका निजी है और जो सामूहिक है उनको उत्कृष्ट करने की बात यहाँ पर रखी गई है। तो ये सारी बातें बहुत महत्वपूर्ण है मौलिक कर्तव्य की प्राकृतिक के अंतर्गत। वर्तमान सूची की भाषा के स्पष्ट करने तथा उन्हें यथावादी और अर्थवान बनाने जाने के साथ ही कुछ आवश्यक और यथावादी कर्तव्यों को जोड़ने के लिए संशोधन की मांग समय समय पर की जा रही है। जितना संभव हो सके इन्हें न्यायालय द्वारा परिवर्तनीय ही भी बनाया जाना चाहिए। तो ये तो सुझाव है जिसको होना चाहिए, और जो कहते हैं समय के साथ बदलेगा, इसमें कोई दो राय नहीं, क्योंकि हमारा संविधान काफ़ी लचीला है और ये काफ़ी महत्वपूर्ण बात थी और ज़रूरी भी। तो इसी के साथ हमारा चैप्टर भी ख़त्म हो जाता है, जो कि काफ़ी महत्वपूर्ण था। आगे का चैप्टर और भी महत्वपूर्ण है, तो आप बने रहे त्रिपाण स्टडी सेंटर के साथ। अगर आपको ये वीडियो समझ में आया, अच्छा लगा, तो जितना हो सके इस वीडियो को शेयर कीजिए। और शेयर करने के लिए कुछ नहीं करना है, यूट्यूब से लिंक को कॉपी करना है और व्हाट्सएप स्टेटस पे लगा देना है, ठीक है। और पहली बार वीडियो देख रहे थे तो अवश्य चैनल को सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए, क्योंकि सब्सक्राइब नहीं कीजिएगा तो आने वाला वीडियो का नोटिफिकेशन भी आपको प्राप्त नहीं हो सकेगा। इसलिए अच्छा है कि चलो सब्सक्राइब करके अपने मोबाइल में सेव कर लीजिए।